और इस वक्त जो है मुकुल रॉय जो तृणमूल में चले गए थे अब वापस बीजेपी की ओर आ रहे हैं, ऐसा लगता है। दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। জানি না আপনার পরবর্তী স্ট্র্যাটেজি কি হবে মুকুলদা দিল্লিতে? আমি তো বলছিলাম আমি চেষ্টা করব ভারতীয় জনতা পার্টি যদি আমাকে জায়গা দেয় আমি ভারতীয় জনতা পার্টিকে একটা ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার। এখানে যদির প্রশ্নটা কেন উঠছে? আপনি তো নিজেই বলছেন আপনি বিজেপিতে আছেন। আমি বিজেপিতে আছি, এই এখনো আমাকে এই কয়েকদিন আগেই বিজেপি চিঠি দিয়ে বলেছে আমি বিজেপিতে আছি। মুকুলদা, আপনার ছেলে কলকাতায় বলেছেন যে আপনার দিল্লি আসার মধ্যে একটা চক্রান্ত আছে, গভীর চক্রান্ত, আপনি কি মনে করেন? না, আমি বিশ্বাস করি না। আপনি বিজেপিতে যে বিজেপির সঙ্গে আছেন অথচ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি টুইট করে আপনার ছেলেকে শুভ্রাংশুকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে মানে অভিযোগ করেছেন যে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে তারও যোগাযোগ আছে। দেখুন, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ জবাব তারই দেওয়ার কথা। সে কোয়াইট অ্যাডাল্ট ছেলে, দরকার হলে সে নিশ্চয়ই এর জবাব দেবে। দাদা, দুটো বিষয়। এক হচ্ছে যে এইখানে বলা হচ্ছে একটি যে এই আপনার ছেলে যে যেহেতু জড়িয়ে পড়ছে, নাম সামনে আসে, সেই বিষয়টিকে আপনি সেট করবার জন্য। না না, এইসব কোনো ব্যাপার নেই, আমি এই কারণে আসেনি। সেও কোনোদিনও এইসব সেট ফেট চাই না। সে একটু আপরাইট ছেলে, হ্যাঁ আছে আমার সাথে, আমি আমার সাথে আসিনি, দ্যাটস ট্রু। আপনি বিজেপিতে বলছেন যে জায়গা পেলে আপনাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে আপনি সেই কাজ করবেন, কিন্তু ঠিক আরেকভাবে গতকাল রাজ্য বিজেপির এক মুখপাত্র বলছেন আপনার শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, বলছেন আপনি ডাইপার ইউজ করে চলেন। আপনি সেই পরিস্থিতিতে একজন ভদ্রলোককে কি প্রয়োজন আছে বিজেপি? এরকম কোনো ব্যাপার নেই। दादा हिंदी में दादा आज ही देख रहे हैं कि आप भगवा जो है सो जैकेट पहन लिए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ठीक है यार, ये तो बाजेगा। শুভেন্দু অধিকারী বলেছে যে মুকুল রায়কে নিতে আমরা আগ্রহী নয় এবং তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা বিন্দু মাত্র আগ্রহী নয়। এই ধরনের নেতার কোনো প্রয়োজন নেই। আর কিছু চাই? আর কিছু নেই কি? আপনি যখন বলছেন আপনি বিজেপিতে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, সেখানে কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্ব বলছে এরকম কোনো বিষয় নেই, এরকম কোনো বিষয় নেই যে উনি আবার বিজেপিতে আসবেন। না, এরকম কোনো কথাবার্তা হয়নি, আমি নিজেই জানি না। দাদা, আপনার দিল্লিতে এসে কার কার সাথে কথা হয়েছে বিজেপির কোন বিষয়ে? উনি অনেকের সাথেই কথা হয়। बंगाल चुनाव के बाद आप तुरंत बीजेपी में दादा भाई করছি ধরছি। दादा, बंगाल चुनाव के बाद आप वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। बीजेपी ने कहा था कि आपने धोखा दिया है, अब क्या आपकी वापसी हो जाएगी आसानी से? धोखा मोखा कुछ दिया नहीं है। अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे, पॉलिटिक्स से थोड़ा धीरे से चल रहा है। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो बीजेपी छिल रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। तो लीडरशिप से मुलाकात हुई है, क्या होने वाली है? पॉलिटिकल काज देखिए, दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है, कोई बात करेगा तो बात करेगा। दादा, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात का कोई समय मांगा है आपने क्या? सर, आपके बेटे ने आप पर थोड़ा मसला है। ठीक है, ठीक है। हाँ दादा, ठीक है। दादा, आपके बेटे ने ही कहा है कि ही इज नॉट डूइंग वेल, माय फादर इज नॉट वेल, दैट्स व्हाई दे आर दैट इज राइट। आई एम नॉट डूइंग नॉट बिल्कुल ठीक, अच्छा नहीं है। तब अब धीरे से हम अच्छा होता है। लेकिन कह रही कि बीजेपी आपके साथ एक्सप्लॉइट कर रही है, आपका फायदा नहीं, वो একটা লাস্ট প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি প্রথম যেদিন দিল্লি এলেন রাত্রিরে, সেদিন একটি সংবাদ মাধ্যমকে আপনি বলেছেন বিশেষ কাজে দিল্লি এসেছেন। সেই বিশেষ কাজ কি হলো? বিশেষ কাজ এখন হয়ে যাবে, 2-4 দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই 2-4 दिन কি দিল্লিতেই থাকবেন তার মানে? तो दरकार होले होना है हमारा दिल्ली में। हम पहले में तो हम कम से कम 1 महीना 1.5 महीना रहता है, अभी आया है, काम होगा तो चला जाएगा। दादा, अच्छी जगह नहीं है भाजपा में अभी। दादा तो आशीष के बार-बार वर्षा तो बड़ा बोलते गए। दादा, आपने बोला कि टीएमसी अच्छी जगह नहीं है, क्या कहेंगे दादा उस कैंप और क्यों? देखिए, वो अच्छा में है, अच्छा में चल रहा है, वो देखेगा वो क्या करेगा। तो आप टीएमसी से रिजाइन करेंगे? टीएमसी से रिजाइन? हम तो रिजाइन करने का बात नहीं है, हम तो टीएमसी में नहीं ही आए। আপনি কি পিএসসি পদ ছাড়বেন? हाँ, ऑलरेडी रिजाइन कर दीजिए।
सर एक आखिरी सवाल है, टीएमसी और बीजेपी दोनों की तरफ से जो बयान आया ऑफिशियली, उसमें ये कहा है कि उनके आने जाने से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ना आप घर के रहे ना घाट के। तो ठीक है, बात करें, बात से बात होगा। মুকুলদা কেউ কেউ বলছেন যে আপনি নাকি শুভ্রাংশুকে বাঁচাতে এসেছেন, পুরোটাই নাকি সেটিং। এটা অ্যাবসলিউটলি বাজে কথা। আমি কাউকে বাজাতে করতে আসিনি, আমি এখানে এসেছি, কাজ আছে, করে চলে যাব। দাদা, এই বাজারে বাম কংগ্রেসের তরফ থেকে বলা হচ্ছে মুকুল রায় বারবার প্রমাণ করে দিচ্ছেন এক বৃন্দে দুটি কুসুম, তৃণমূল বিজেপি। না, দ্যাটস নট ট্রু, দ্যাট ইজ নট কারেক্ট। দাদা, আপনার মনে হচ্ছে বিজেপি ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবার অনেক ভালো ফল করবে, ডেফিনেটলি ভালো ফল করবে। पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, किसी नेता की करने का कोशिश करेगा। शीर्ष नेतृत्व में किसी से बात हुई? अमित शाह किसी के साथ बात हुआ না, হয়নি। দাদা, অমিত শাহ বাংলা গিয়ে বলেছেন 35টা লোকসভা সিট পাবে। আপনি কি মনে করেন বাংলা থেকে 35টা? বাংলাতে अच्छा होगा, कितना क्या होगा वो देखा जाएगा। মুকুলদা, যে তৃণমূল আপনি তৈরি করেছিলেন তারপরে এত এত দুর্নীতি, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, এটা কেমন লাগছে? সব সঠিক না, এটা তো ঠিক নয়, হওয়া উচিত নয়। পলিটিক্সের লোক এই সব জায়গায় এখানে কারণে ওদের হয়ে গেছে। ওরা এরা কি চক্রান্তের শিকার নাকি দুর্নীতিতে জড়িত? चक्रांत शिकार। दादा, आपने जेपी नड्डा और किसी से बात हुआ? दादा, आपने अमित शाह, जेपी नड्डा किन्हीं से टाइम मांगा है? अभी किसी से मांगा नहीं। আমি আরেকবার অভিষেকের নেতৃত্বকে আপনি কি পেলেন? অভিষেকের নেতৃত্ব देखिए, ये दादा क्या टाइम विल प्रूव, टाइम विल प्रूव। क्या दादा कोई सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन का भी कोई प्रेशर है क्या आपके ऊपर? ना, हमारा पास कोई प्रेशर नहीं है। दादा शुभेच्छा। ठीक है, सबको बिल्कुल शुभेच्छा है। टीएमसी में गए थे और अब वापस बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टीएमसी मैं छोड़ चुका हूं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर मुझे कोई काम देगी तो मैं वो काम करूंगा। लेकिन अब बीजेपी कोई काम देगी या नहीं, कब देगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मुकुल रॉय को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं की है। मुकुल रॉय जब टीएमसी में गए तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया था, तो अभी उनकी विधानसभा की सदस्यता बाकी है बीजेपी की तरफ से, न उन पर कोई कार्रवाई हुई। अब अगले आम चुनाव से ठीक पहले वो एक तरह से वापस बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनकी बात हो चुकी हो बीजेपी में ऊपर के जो नेता हैं उनसे, लेकिन अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया और बीजेपी ने भी कोई इस मामले में अपनी तरफ से सफाई नहीं दी है कि वो उनको ले रही है या नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन है। राजीव, ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुकुल रॉय की, इससे तो लगता यही है कि टीएमसी में तो उन्होंने छोड़ दिया है अब, और बीजेपी में वो कोई भी काम करने को तैयार है, तो बीजेपी क्या उन्हें फॉर्मली अब वापस फिर लेगी एक बार? देखिए, ये कहना अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको मुकुल राय की अगर चीज समझना होगा कि वो बीजेपी के विधायक अभी भी बने हुए हैं, यानी विधायकी पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। बेशक वो टीएमसी में शामिल हो गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर कहिएगा तो विधायक के तौर पर वो बीजेपी में बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये जो दिल्ली आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हुए हैं, और जो उनके बेटे ने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उनको अगवा कर लिया गया है या लापता है, बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं एडल्ट हूं और मैं अपने हिसाब से फैसला ले सकता हूं कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया हूं और मेरा कुछ कार्यक्रम है। जैसी जानकारी मिल पा रही है कि वो चाह रहे हैं कि अमित शाह या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा से मुलाकात हो, लेकिन उनको अभी तक समय नहीं मिला है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। वजह यह भी बताया जा रहा है कि उनके जो लड़के हैं, मुकुल राय के जो लड़के हैं, वह भी टीचर स्कैम में फंसे हुए हैं, घोटाले में। तो शायद कुछ इस उम्मीद में कि फिर से बीजेपी में आ जाए, कुछ राहत मिल जाए, इस तरह की बात सुनने में आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मुकुल राय के बारे में बेटा का जो कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और उनको कोई गुमराह कर रहा है। जी, तो ये एक खास राजनीतिक डेवलपमेंट है पश्चिम बंगाल की राजनीति में खास तौर पर। लेकिन मुकुल रॉय लगता है जैसे अभी अधर में हैं। बीजेपी ने कुछ भी स्पष्ट उन्हें लेकर नहीं कहा है। अपना बेटे को लेकर के शायद वो परेशान हो जो टीचर भर्ती घोटाले में फंसे हुए, हालांकि वो बेटा टीएमसी में है उनका, लेकिन खुद वो बीजेपी में फिर कब आएंगे। हो सकता है बीजेपी ये कहे कि वो बीजेपी छोड़कर कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर वो विधायक बने और उनकी वो विधायकी अभी बनी हुई है।
टीएमसी की तरफ से भी अभी बयान का इंतजार है, ममता बनर्जी या टीएमसी के कोई और वरिष्ठ नेता इस पर क्या बयान देते हैं। लेकिन मुकुल रॉय एक बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं पश्चिम बंगाल के। एक टाइम पर तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 हुआ करते थे, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, ममता के साथ मतभेदों के चलते बीजेपी में आए, फिर वापस टीएमसी में गए और अब फिर बीजेपी की राह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे कोई भी काम देगी तो मैं करने को तैयार हूं। अब देखते हैं बीजेपी उन्हें काम देती है या नहीं देती है, तो कब।